So hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will talk about specialization of epithelium, and in the previous video we talked about the types of epithelium and where the epithelium is found. So if you haven't watched that video, please go to my description and watch that video, then we will come to this video. So in this video we are going to talk about specialization. I have told you about lateral domain, apical domain and basal domain. Apical domain contains microvilli, stereocilia and cilia. And lateral domains we have some proteins, and in basal also we have some proteins. So let's start the topic. So first we'll look about apical domain. So let's start the topic. We have a cell. This is apical domain. This is apical domain. This is microvilli. This is stereocilia. And this is cilia. So proteins found in microvilli are the core of actin. क्या कौन से प्रोटीन्स फाउंड होते हैं? एक्टिन प्रोटीन्स. एंड वी विल लुक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ microvilli. So we have this actin proteins in this manner. And we have myosin filaments which is attached to the actin proteins and the core. So this is myosin filaments. This is actin. We have actin proteins downwards also, like in this manner, which later form the terminal web. And we have spectrin protein which is attached to this actin, or we can say terminal web. Downwards we have intermediate filaments which is attached to the actin. Okay, means we looked about, this is myosin filament and this is actin binding proteins which is attached in the middle of the actin. We have spectrin, we have myosin, this is myosin 2. All the core is held by myosin filament to the core of that microvilli. And advantages of having this microvilli, it increases the surface area. Okay, it increases the surface area. And the cells which have lots of microvilli is the feature of gastrointestinal system, and some parts of, or we can say some cells of nephron, mainly in the proximal part. So we looked about the microvilli structure which increases the surface area. Now we have stereocilia, which is structurally different to the microvilli. What it is? Structurally different to the microvilli, and it is non-motile. Okay, and this is found in the inner ear, which helps in the maintenance of balance and hearing. We have cilia, which is motile structure. So first of all we have microvilli, stereocilia and cilia. We looked upon the structure of microvilli. Now we will look about the structure of cilia, which has cilia structure is like this. Cilia structure. Cilia originate from the basal body. We have basal body. This is basal body, and basal body is having 9 triplets in a circular manner, like this, in a circular manner, and which is made up of tubulin protein. So we looked about cilia originate from the basal body and has 9 triplets in a circular manner, which has tubulin protein, and every two of these proteins extend into the cilium, which form doublets, and which are 9 in number. And there is a central sheath which have 2 singlets. Okay, and 9 doublets and 2 singlets which have dynein arm. We have dynein arm, and these dynein arm interact with other dynein doublets. Okay, so we have looked about cilia originate from the basal body, have 9 triplets in a circular manner made up of tubulin proteins, and every 2 of these proteins extend into the cilium, which form 9 doublets, and in a central we have 2 singlets, and we have dynein proteins which interact with the other doublets. So like this, these are doublets. We have 9 doublets, and each of these doublets have dynein protein which interact with other doublet. So we looked about the structure of cilia. So we have we can say that it has arrangement of 9 plus 0, and it has arrangement of 9 plus 2, because it has 2 singlets in between and it has no singlets in between. So we can say 9 doublets and 1 singlet, and 2 singlets, 9 triplets and 0 singlets. So we looked about the structure of cilia. Now we will look about on the structure of lateral domain. Okay, हमारे पास ये structure है किसी सेल का, हमारे पास किसी सेल का ही स्ट्रक्चर है, ओके, तो हम बोल सकते हैं ये एक प्रोटीन का जुड़ा होता है, ये आपस में स्टिच होते हैं. हमारे पास दूसरा ये लेयर होता है, ये आपस में स्टिच होता है. ये लेटरल डोमेन की बात कर रहे हैं.
क्योंकि लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, स्टिच होता है। फिर हमारे पास एक बटन शेप्ड होता है, फिर हमारे पास एक विंडो शेप्ड होता है। ठीक है, लेटरल डोमेन में 4 सब टाइप्स होते हैं। अब हमें उसे डिटेल में डिस्कस करना है 4 सब टाइप्स को कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ये जो सबसे पहला वाला है हमारे पास जोनुला ऑक्यूलोडेंस। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लेटरल डोमेन है ये हेल्प किस चीज़ में करता है। देखो, जैसे हमारे पास एपिकल पार्ट में हमारे पास हमने देखा कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो जो लेटरल डोमेन होता है ये यहाँ से इनको गिरने नहीं देता, और वी कैन से इट्स स्टिच टू ईच अदर, द सेल्स आर स्टिच टू ईच अदर विद दिस लेटरल डोमेन्स। ओके, फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया कि ये जो एपिकल डोमेन को है नीचे गिरने नहीं देता। सेकंड फंक्शन वी कैन से it regulates paracellular movement, or we can say these stitches also prevent water soluble substance or paracellular movement of substances। अब हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये स्टिच हो जाएगा तो ना एपिकल पार्ट से जाएगा, और जो ये एंट्री होती थी पैरासेलुलर सब्सटेंसेस की ये नहीं होगी। तो हमने देखा जो लेटरल डोमेन है जोनुला ऑक्यूलोडेंस पहला वाला है वो स्टिच करके रखता है और पैरासेलुलर मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, होने नहीं देता। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, जोनुला ऑक्यूलोडेंस को टाइट जंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास सेकंड की बारी है जोना एडहेरेंस की। जो ये दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जोना एडहेरेंस, ये क्या करता है, दे आर लाइक स्टिकी बेल्स व्हिच होल्ड द सेल टुगेदर एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन द जोना ऑक्यूलोडेंस। दीज होल्ड द लेटरल सरफेस। ये इनका जो अटैचमेंट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जोना ऑक्यूलोडेंस से। ठीक है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, जोना एडहेरेंस को इंटरमीडिएट जंक्शन, इंटरमीडिएट जंक्शन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो होता है ये जो स्टिकी बटन्स टाइप में होता है क्या होता है, ये जो स्टिकी बटन्स होते हैं मैकुला एडहेरेंस। ठीक है, ये स्टिकी बटन्स को होते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स। लेटरल डोमेन होते तो सब तो होल्ड करते हैं आपस में, लेकिन हम इनको अलग अलग नेम से जानते हैं। हम थोड़ी देर में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मैकुला एडहेरेंस, डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं इन्हें। और गैप जंक्शन से तो नाम से ही पता चल रहा है ये कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो गैप जंक्शन किस में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में। तो अब हम डिटेल में देखेंगे इनके स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास आया जोनुला ऑक्यूलोडेंस। हमारे पास क्या है, जोनुला ऑक्यूलोडेंस। अब जैसे हमारे पास ये सेल स्ट्रक्चर है, इसको साथ साथ नोट कर लेना ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। अब जैसे हमारे पास ये जोनुला ऑक्यूलोडेंस है, हमने देखा था ये प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन की लेटरल सरफेस पे। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स और किस वे में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहला तो ये हो जाएगा, ये एकदम इंटैक्ट प्रेजेंट होते हैं ताकि ये अच्छे से अटैच हो सके। और हमने बोला था लेटरल डोमेन का फंक्शन क्या होता है कि ये एपिकल सरफेस के सब्सटेंसेस को नीचे नहीं आने देता और पैरासेलुलर मूवमेंट को रोक के रखता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लेटरल डोमिनेंस इनको स्टिच करके रखता है। तो ये सबसे पहले वाला हो जाएगा हमारे पास ऑक्यूलोडेंस, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा क्लॉडेंस। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ऑक्यूलोडेंस और क्लॉडेंस। और हमारे पास एक जोनुला प्रोटीन्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्यूलोडेंस और क्लॉडेंस को प्रॉपर एंकर्ड करके रखते हैं, जो 1, जो 2 एंड जो 3। तो हमने बोला दीज जोनुला प्रोटीन्स होल्ड द ऑक्यूलोडेंस एंड क्लॉडेंस प्रोटीन्स प्रॉपरली एंकर्ड इन द मेम्ब्रेन। तो हमने देखा कि इसके पास 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ऑक्यूलोडेंस एंड क्लॉडेंस एंड जोनुला प्रोटीन, जो इन दोनों में हेल्प, इन दोनों को एंकर्ड करके रोक के रखता है और होल्ड करके रखता है। ठीक है, और अब हमारे पास आया जोनुला एडहेरेंस। तो जोनुला एडहेरेंस क्या होगा, इसके नीचे प्रेजेंट होता है। हम इसको याद करने के लिए, इनके प्रोटीन्स को याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ईवा। तो जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ये ई से कौन सा प्रोटीन हो सकता है, ई कैथेरिन। ठीक है, वी से क्या हो सकता है हमारे पास, विंकुलिन। और ए से हमारे पास क्या हो सकता है, अल्फा एक्टिनिन। तो ये क्या करता है, जैसे हमारे पास ये एक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास ई कैथेरिन है। ई कैथेरिन के अटैच में हमारे पास विंकुलिन प्रेजेंट होगा, और कैसे भी बना सकते हैं, और अल्फा एक्टिनिन प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से इनको रोक के रखता है, स्टिच करके रखता है। हमने देखा था जोना एडहेरेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है जोनुला ऑक्यूलोडेंस से। तो हम बोल सकते हैं ये जो होता है ये ज़्यादा टाइटली रोक के रखता है। ठीक है, तो हमने देखा जोना एडहेरेंस के पास कितने टाइप्स के हुए, ई कैथेरिन, विंकुलिन एंड अल्फा एक्टिनिन। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास मैकुला एडहेरेंस आया। अब मैकुला एडहेरेंस में हमारे पास, हमें प्रोटीन्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं मैकुला एडहेरेंस में। अब मैकुला एडहेरेंस हमारे हमने बोला था ये स्टिकी बटन्स की तरह होता है, ये और ये रोक के रखता है। इनके पास होते हैं स्पेशल डिस्क लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन विच आर डेस्मोप्लाकिन एंड प्लाकोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो जोना मैकुला एडहेरेंस है, इसके पास 2 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डेस्मोप्लाकिन एंड प्लाकोग्लोबुलिन्स। और ये जो 2 प्रोटीन्स होते हैं ये भी कैल्शियम की हेल्प से हेल्ड करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं कैल्शियम की हेल्प से। ठीक है, हमने 3 देख लिए, जोनुला ऑक्यूलोडेंस, जोना एडहेरेंस, मैकुला एडहेरेंस। अब हम देखेंगे गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन मैंने पहले बताया था कि ये कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होता है गैप जंक्शन, दीज हैज स्पेशल पोर विच इज मेड अप ऑफ 6 प्रोटीन्स।
ओके, एंड मेकिंग अ चैनल ऑन अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड में हेल्प करता है, एंड दीज चैनल आर कनेक्टेड बाय ईच अदर एंड सर्टेन सब्सटेंसेस विल मूव फ्रॉम दीज चैनल्स एंड सर्टेन सब्सटेंसेस कैन बी सोडियम, कैल्शियम। ओके, तो हमने बोला ये एक चैनल बनाता है और जो सर्टेन सब्सटेंस है ये मूव कर सकते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड कोनैक्सिन्स। ओके, एंड होल सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोनैक्सॉन। तो हमने क्या देखा, ये 6 प्रोटीन्स का बना होता है और इनके स्पेशल प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, कोनैक्सिन, और होल सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोनैक्सॉन। हमने बोला 6 प्रोटीन्स का बना होता है, तो इसका स्ट्रक्चर में भी ऐसे हो सकता है। अब हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6 का बना होता है, इसको तो हम कोनैक्सिन बोलते हैं और इनके होल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोनैक्सॉन। ठीक है, तो हमने गैप जंक्शन में देखा 6 प्रोटीन्स होते हैं और इसके प्रोटीन्स को बोलते हैं कोनैक्सिन। ठीक है, अब हमारा लेटरल डोमेन यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम रिवाइज कर सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने एपिकल डोमेन में क्या पढ़ा था, माइक्रोविलाई, स्टीरोसीला एंड सिलिया, एंड लेटरल डोमेन में क्या पढ़ा था हमने, जोनुला ऑक्लूडेंस, जोना एडहेरेंस, मैकुला एडहेरेंस एंड गैप जंक्शन। अब हम बेसल डोमेन में पढ़ सकते हैं। बेसल डोमेन मतलब सेल के नीचे वाला हिस्सा। बेसल डोमेन में क्या होता है, हम इसको इजी करने के लिए डायग्राम से कर सकते हैं। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये इस वे में प्रेजेंट, हम इसको स्ट्रक्चर है हम बनाते हैं। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास इसमें जोना ल्यूसिडा प्रेजेंट होता है, हमारे पास जोना डेंसा प्रेजेंट होता है, और ये दोनों हमारे पास क्या बनाते हैं मिलकर, बेसल लैमिना। तो हम क्या बोल सकते हैं, बेसल लैमिना में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जोना ल्यूसिडा एंड जोना डेंसा। ठीक है, अब उसके नीचे क्या आता है, रेटिकुलारिस, लैमिना रेटिकुलारिस। ये लैमिना रेटिकुलारिस हो गया, और ये जो होल स्ट्रक्चर है वो बनाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम बोल सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में 2 प्रेजेंट होता है, बेसल लैमिना एंड लैमिना रेटिकुलारिस, और दोनों मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं जो ये पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, दैट इज बेसल लैमिना, इट इज सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल, एंड लैमिना रेटिकुलारिस इज सीक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट सेल। लैमिना रेटिकुलारिस इज सीक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट सेल्स इन अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो हमने बोला कि बेसल लैमिना के पास जोना ल्यूसिडा एंड जोना डेंसा होता है, एंड लैमिना रेटिकुलारिस के पास, और ये दोनों मिलकर बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट से सीक्रेट होता है, ये एपिथेलियल सेल से सीक्रेट होता है। ठीक है, अब हम इसमें प्रोटीन्स याद कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जोना ल्यूसिडा है, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा याद करना। जोना ल्यूसिडा के पास कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले इंटीग्रिन्स, दूसरा होता है हमारे पास लैमिनिन, और तीसरा हमारे पास प्रेजेंट होता है इंटैक्टिन। ठीक है, अब जोना डेंसा के पास कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास कोलाजन 4 और फिब्रोनेक्टिन होता है, कोलाजन 4 एंड फिब्रोनेक्टिन। ठीक है, और लैमिना रेटिकुलारिस के पास, लैमिना रेटिकुलारिस के पास कोलाजन 7 एंड वो जो लैमिना रेटिकुलारिस, और वी कैन से लैमिना। ठीक है, तो हमने देखा इंटीग्रिन्स आर द स्पेशल प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रिन्स होता है हमने पढ़ा जोना ल्यूसिडा में होता है, इंटीग्रिन्स आर द स्पेशल प्रोटीन्स विच आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन विद इंटीग्रिन्स, एंड लैमिना अटैच विद इंटीग्रिन्स। फिर इससे लैमिना अटैच होगा, पहले इंटीग्रिन्स होगा, फिर लैमिना होगा, फिर उसके नीचे इंटैक्टिन होगा। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले इंटीग्रिन्स होगा, फिर लैमिना होगा, फिर इंटैक्टिन होगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने देखा सबसे पहले इंटीग्रिन्स प्रेजेंट होगा, फिर लैमिना होगा, फिर इंटैक्टिन होगा, ये एक दूसरे से अटैच होंगे, और फिर कोलाजन 4 की हेल्प से फिब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होगा, उसके नीचे कोलाजन 7, देन लैमिना रेटिकुलारिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एंड करते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बेसल डोमेन को। बेसल डोमेन में हमने क्या पढ़ा कि इसके पास बेसल लैमिना होता है और लैमिना रेटिकुलारिस होता है। बेसल डोमेन में बेसल लैमिना हमने क्या पढ़ा, जोना ल्यूसिडा होता है, एंड इसके पास जोना डेंसा होता है। ठीक है, जोना ल्यूसिडा में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रिन्स, लैमिनिन एंड इंटेक्टिन। ठीक है, और जोना डेंसा के पास कोलाजन 4, फिब्रोनेक्टिन। ठीक है, और लैमिना रेटिकुलारिस कोलाजन की हेल्प से, कोलाजन 7 की हेल्प से किससे जुड़ता है, फिब्रोनेक्टिन से, और फिब्रोनेक्टिन ऊपर जाके कोलाजन 4, इंटैक्टिन, लैमिनिन, इंटीग्रिन। ठीक है, हम एक डिस्ट्रॉफी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इन विच अ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन इज इंट्रासेल्युलरली डिफेक्टेड। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव एपिडर्मोलाइसिस क्या होता है, व्हेन कोलाजन 7 बिकम म्यूटेंट। अब जब कोलाजन 7 ही नहीं होगा तो ये अटैचमेंट प्रॉपर होगी नहीं, तो इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रॉफिक एपिडर्मोलाइसिस। तो आज की वीडियो, इस टॉपिक पे वीडियो यहीं एंड होती है। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।